एवरीवन, वेलकम टू द बायो एल्केमिस्ट। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है? मज़ेदार। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन एज वेल एज मोनेरा। लेट्स बिगिन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो इसको कार्ल वूज ने 1977 में दिया था। इसको हम 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज डिवाइडेड इंटू द 3 डोमेन बैक्टीरिया, आर्की एज वेल एज द यूकैरिया। अगर मैं यूकैरिया को देखूं तो यूकैरिया में तो वो सारे अवेलेबल है सिवाय मोनेरा के। इट मीन्स दैट मोनेरा जो यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ बैक्टीरिया और आर्की में अगेन डिवाइड कर दिया कार्ल वूज ने। क्यों? बिकॉज ही हैज स्टडीड द 16S rRNA सीक्वेंस इन देम एंड ही क्लासिफाइड देम डिफरेंट। दैट बैक्टीरिया इंक्लूड द मोनेरा एंड द आर्की इंक्लूड द आर्की बैक्टीरिया। सो अब हमारे पास टोटल 6 किंगडम है। कौन कौन से? यू बैक्टीरिया, आर्की, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। एंड हमारे पास 3 डोमेन है, बैक्टीरिया, आर्की एज वेल एज यूकैरिया। You know what? There are some living beings who don't even pay rent, who don't even say thank you, but still live inside you for free. It's nobody but it's Monera. So whenever you eat curd, whenever you breathe, you found Monera everywhere. So what exactly Monera is? Monera is one of the kingdom who include like single celled prokaryote, like without nucleus, microscopic organism. So you can consider them as the OG of the earth. They appeared on the earth 3.5 billion years ago. So let's meet Monera. आज की क्लास में हम पढ़ते हैं Monera. मोनेरा के अंदर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया आर नोन एज द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। इट इज़ सो अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया ही देखने को मिलता है। इट इज़ यूबिक्विटस इन नेचर, मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग द हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन, स्नो, डेजर्ट। हम हर जगह मोनेरा को देख सकते हैं। So on the basis of shape, it is divided into 4 parts: spherical, rod shape, comma shape, as well as a spiral. इसके एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं कॉसाई, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरला। डिपेंड अपॉन इट शेप इट्स इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। बट इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, बट इसका बिहेवियर काफ़ी ही कॉम्प्लेक्स है। As based on the mode of nutrition, it is further divided into the autotrophic as well as the heterotrophic. Some of the bacteria can prepare their own food, as we discussed in the class 10th, that some purple sulfur bacteria, or in the here we will study about the chemosynthetic as well as the photosynthetic bacteria. Some of the bacteria are parasite and saprophyte. Actually, the most of them are this only. Few are considered as the autotrophic. So starting with the archaebacteria, we can say that it is very unique. Why it's very unique? Because it can survive in the most harsh environment. Why? How can it able to survive in that situation? Because it has some kind of specialized cell membrane as well as the cell wall, so that it help them to survive in such harsh environment. So based on the habitat, it is further divided into the 3 part: halophiles, thermoacidophiles as well as the methanogens. अगर हम मिथेनोजेन से स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होगा मिथेनोजेंस मीन्स मीथेन प्रोड्यूसिंग, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा? एक्चुअली इट इज मार्शी एरिया में पाया जाएगा, वेयर इट फाउंड एट दैट विज द गोबर गैस, काउडंग केक में भी हमें मीथेन का प्रोडक्शन देखते हैं, एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इन द rumen ऑफ कैटल्स. What is halophiles? Halo means salt. Those organisms which can survive in the extreme salt condition are known as halophiles. Next is thermoacidophiles. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. इवन above the 100 degree Celsius, some of the bacteria can survive there, as well as some low pH. Example are sulfolobus. It is very important. Further, we studied about the eubacteria. Eubacteria is also known as the true bacteria due to the presence of rigid cell wall, and some of them have the motility due to the presence of flagella. Flagella helps them to move from one place to other. फ्लैजिला ऐसे कुछ शेप में होता है, ऐसे, तो ये इनको हेल्प करता है मूवमेंट में. साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करूँ तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स. It is actually unicellular, colonial, filamentous, marine as well as the terrestrial algae. ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के MCQ में दिख सकते हैं.
Their colonies are surrounded by the gelatinous sheath. It is also important क्योंकि उनकी कॉलोनी कुछ इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये जो gelatinous sheath से इनकी कॉलोनी को कवर किया जा सकता है. Even they have the characteristics to store the atmospheric nitrogen in their specialized cells called as the heterocyst. हेट्रोसिस्ट कहाँ होता है? अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे हेट्रोसिस्ट. बाकी नॉर्मल सेल एंड बाकी सेल्स जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में करेगा, बट जो हेट्रोसिस्ट होगा वो यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा. इनके सराउंडिंग हम देख सकते हैं एक म्यूसिलाजिनस लेयर है जो इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. बाकी अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो नॉस्टॉक और एनाबिना, इसके 2 एग्जाम्पल है. इन 2 ऑर्गेनिज्म में हमें हेट्रोसिस्ट देखने को मिलता है. फर्दर वी स्टडीड अबाउट द chemosynthetic autotroph. Simple है, those organisms who can oxidize various inorganic substances such as nitrite, nitrate. ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया बोलते हैं. मैक्सिमम आर द हेटरोट्रॉफिक, जैसा कि हमने बताया. दे आर मोस्ट एबंडेंट as well as they are the important decomposer. How they are beneficial? They are beneficial because whatever we used to eat curd from the milk, bacteria is responsible. Lactobacillus bacteria is responsible for it, as well as some medicine production as well as the antibiotic production. In the soil nitrogen fixation, तो ये कुछ beneficial point है जो हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में. इसके बारे में डिटेल आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, आपको बस यहाँ पे याद रखना है इनके बारे में. कुछ ऐसे होते हैं हम हमेशा इनमें से फ़ायदा नहीं ले सकते, कुछ नुकसान भी होगा. लाइक वी आर having the kind of cholera, typhoid, citrus canker, anthrax in the cattle. These are the disease caused by the bacteria. बहुत सारे और भी ऐसे डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है. सो फर्दर अगर हम बात करें इस टॉपिक में मोनेरा के, तो हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑफ द अर्थ. Even why? Because they devoid of cell wall. उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता. एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, एज वेल एज सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्दर की क्लासेस में हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. हाउ दे रिप्रोड्यूस, हाउ दे लाइक मैक्सिमाइज देयर नंबर, कैसे इतने ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है. और आगे हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा और एनिमलिया के बारे में, फर्दर और भी जो हमारा किंगडम है उनके बारे में. सो स्टे ट्यून विद मी फॉर द फर्दर वीडियोज. थैंक यू सो मच.